Hello everyone, good evening to all. Welcome to Study with Syal Swati. I hope that you all are safe and sound. So, जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक टेंसेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस ठीक है so it's very easy simple future tense is very easy you only have to keep the rule in your mind affirmative subject plus will shall plus first form of verb plus object okay you have to keep in your mind that in simple future tense what we use will shall along with first form of verb okay along with first form of verb just take an example Acha, first of all children you have to remember in your mind you have to keep one thing in your mind that we use shall along with I or we means if you see that the given subject okay the given subject is I or we you have to use shall and with the other subjects you have to use will means अगर आप देखते हो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आई और वी से हो रही है तो आप shall का यूज़ करोगे साथ में और अगर आई और वी को छोड़ के ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस टू आई एंड वी आप देखते हो कि द सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है इज समथिंग डिफरेंट है ना कुछ और सब्जेक्ट आपका अगर सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो आप उसके साथ will का यूज़ करोगे ओके सो हियर यू कैन टेक वन एग्जाम्पल माई मदर will cook tasty food okay here you all can see that here the subject is my mother here the subject is my mother so here what we will use with the subject my mother will my mother will cook first form of verb cook tasty food okay I also give you one example in which we will use shall like I shall go to school tomorrow okay like this we shall play in the park today like this okay so you have to keep this thing in your mind that if you get I or we in the sentence you have to use shall otherwise you have to use will with the other subjects okay my mother will cook tasty food here you can see my mother what is my mother is subject will cook is first form and tasty food is your object okay always remember whatever is given before the verb or helping verb that is your subject okay and whatever the words or things given after the verb that is your object okay so here my mother is your subject will cook is your verb and tasty food is your object and please remember if the sentence is beginning with I and we that you have to use shall fine okay now it's negative and interrogative sentence both are very easy negative my mother will not cook tasty food okay यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है विल है ना तो हमने क्या करना है विल के बाद नॉट का यूज़ करना है व्हेन वी हैव टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंस माय मदर विल नॉट कुक टेस्टी फूड एंड वाइल फ्रेमिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल आपका फ्रंट में आ जाएगा सेंटेंस के विल माय मदर कुक टेस्टी फूड क्वेश्चन मार्क तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है ओके इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत ईजी होता है क्यों क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई है विच इज़ विल एंड शैल okay so my mother will not cook tasty food and interrogative sentence will my mother cook tasty food like this so you have to remember how many tenses I have taught you simple present tense simple past tense and simple future tense okay so you have to remember please remember this thing in your mind if you see s or es in the first form of the verb it means which the sentence belongs to which tense simple present okay and if you don't see s or es in the first form of the verb then also the sentence belongs to simple present tense क्यों हमेशा ध्यान रखिए verb में s और es कब लगा होता है जब हमारा subject singular होता है आप देख सकते हो मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ और हम लोग वर्ब में एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं फर्स्ट फॉर्म सीधा यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोनों ही केसेस में सेंटेंस किसको बिलोंग करते हैं सिंपल प्रेजेंट को अब आपके माइंड में ये बहुत ही केयरफुली फीड होना चाहिए कि इफ यू सी
एस और ई एस, ओके, इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर आप नहीं भी देखते हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म देखते हो वर्ब की, देन इट ऑल्सो मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, रिमेंबर इफ यू सी सेकेंड फॉर्म इन द सेंटेंस, ओके। तो इतना सोचना नहीं है आपको कि आप ऐसे सोचने लग जाओ कि ये सेंटेंस कौन से टेंस को बिलोंग करता है। अगर आप देखते हो कि आपका सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, कि द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, ओके। और ये चीज़ आपके माइंड से नहीं निकलनी चाहिए कि अगर आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म है और आपको उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने को बोला जाए, ठीक है, तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, डिड। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अगर सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेंटेंस में, तो फॉर मेकिंग द सेंटेंस, कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, विच हेल्पिंग वर्ब यू ऑल विल यूज, डिड। और डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एंड सिंपल प्रेजेंट में आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डस का यूज हम करते हैं, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डस का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे, फाइन। और सिंपल फ्यूचर में तो हमें ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल एंड शैल, राइट, है ना। तो अगर हमको जब नेगेटिव बनाना होगा तो हम इनके बाद नॉट का यूज़ कर लेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इनको हम फ्रंट में ले आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो 3 tenses I have taught you, okay. Simple present tense, simple past tense, and simple future tense. 3 tenses I have taught you. So now what you all have to do, you all have to revise all these 3 tenses very carefully at your home, okay. ओके तो आप ये 3 टेंसेस अच्छे से घर पे रिवाइज करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं, कोई क्वेरी, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक की वीडियो पहले शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ ये चीज़ मेंशन कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट गो टू स्कूल डेली, ओके, अटेंड योर ऑल क्लासेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। जो भी आपके घर पे बड़े हैं, नॉट ओनली घर पे, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, अपने मम्मी पापा का हमेशा कहना मानिए, ओके। जो भी आपके मम्मी पापा बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, आपके वेलफेयर के लिए होता है, इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने मम्मी पापा का भी आप रिस्पेक्ट करिए, और उनकी हर बात आपको माननी है, ठीक है। और कोई भी बच्चे को स्टबर्नेस नहीं दिखानी है, जिद किसी बच्चे को नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। मम्मी पापा जो बोलते हैं आपको उनकी बात को मानना है, और अच्छे से घर पे पढ़ाई करनी है, ओके। एंड गो टू स्कूल रेगुलरली, फाइन, एंड अटेंड योर ऑल क्लासेस, डू योर स्टडीज़ वेरी सिंसियरली एट योर होम, ओके। एंड फिर से मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप ये तीनों टेंसेस को अच्छे से घर पे एक बार रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करके अपना क्वेश्चन वहाँ पे पुट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ओके। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।